بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ لیکن فرحاد علی تیمور نے مجھے موت کے دروازے پر پہنچا دیا ہے۔ میں اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے خود کو موت کی سزا دے رہا ہوں۔ اس نے ریوالور کی نال کو اپنی کنپٹی سے لگایا۔ سامنے والی چھت سے بیٹی کی چیخ سنائی دی، نہیں ڈیڈی نہیں۔ وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ ٹھائیں کی گونجتی ہوئی آواز میں اس کی آواز گم ہو گئی۔ جس دوربین سے میرے گھر میں جھانکنے آئی تھی وہ آنکھوں سے سرک کر گلے میں جھول گئی۔ کسی کی حرام موت دیکھنے کے لیے دوربین ضروری نہیں ہوتی، دوربینی لازمی ہوتی ہے۔ اب ان کی باری ہے جو یہودی مصنوعات پاکستان میں فروخت کر رہے ہیں۔ اٹینشن پلیز، توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ A dangerous man is here to step in the heart of Israel۔ ایک خطرناک شخص ملک اسرائیل کے قلب میں اپنے قدم رکھنے والا ہے۔ یہ آواز نیو یارک سے تل ابیب تک گونج رہی تھی۔ یہ اطلاع ٹرانسمیٹر کے ذریعے سنائی دی، سول اور فوج کے سراغ رسانوں تک پہنچی۔ اعلیٰ حکام اور اعلیٰ فوجی افسران نے پہلے تو اسے بچگانہ سی حرکت سمجھ کر نظر انداز کیا، پھر ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ رات کے 1-2 بجے ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ان کے اعلیٰ عہدیداران کے تمام سیکرٹریز فون اٹینڈ کرتے تھے، اور جو اپنے اعلیٰ آفیسر کو نیند سے بیدار نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا ہو جاتا تھا۔ ان حالات میں تمام اعلیٰ عہدیداران کو فون اور ٹرانسمیٹر اٹینڈ کرنا پڑا، کیونکہ تمام سیکرٹریز کے اندر زلزلہ پیدا ہونے سے اس نئے جملے کی اہمیت کو تسلیم کرنا لازمی ہو گیا تھا، اور یہ تصدیق ہو گئی تھی کہ ڈینجرس مین آ رہا ہے اور اس کا تعلق ٹیلی پیتھی سے ہے۔ امریکی اور اسرائیلی وزارت خارجہ کے درمیان ایک ایک لمحے میں رابطہ ہو رہا تھا۔ دونوں ممالک کے متعلقہ افسران اطلاع دینے والے سے پوچھ رہے تھے، تم کون ہو؟ اسرائیل کے قلب میں قدم رکھنے والا وہ ڈینجرس مین کون ہے؟ اسرائیل کے قلب سے مراد بیت المقدس ہے یا تل ابیب؟ اطلاع دینے والے نے جواب دیا، اس کا جواب کل ملے گا۔ یہ خوف اور پریشانی میں مبتلا کر دینے والی بات تھی۔ اب انہیں کل کا انتظار کرنا تھا۔ دونوں ملکوں کے بڑے شہروں میں بڑے بڑے اداروں کے ہنگامی اجلاس ہونے لگے۔ امریکہ کا فی الحال کوئی دشمن نہیں تھا، لیکن وہ اسرائیل کے لیے فکر مند تھا کہ وہاں کون آ رہا ہے اور اس ملک میں کیا ہونے والا ہے۔ سپر ماسٹر ہالی مین نے کہا، یوں تو یہودیوں کے بہت سے دشمن ہیں، خود ہم ان سے پریشان رہتے ہیں، لیکن مصلحتاً دشمنی نہیں کرتے۔ کھل کر دشمنی کرنے والے صرف مسلمان ہیں۔ کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ اجلاس کے حاضرین نے تائید کی۔ سپر ماسٹر نے کہا، وہ ڈینجرس مین ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے تعلق رکھتا ہے اور فرحاد کے ہاں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج ہے۔ جان لیمبوڈا نے کہا، میں خیال خوانی کے ذریعے اس اطلاع والے کے دماغ میں پہنچنے کی ناکام کوششیں کر چکا ہوں۔ وہ سانس روک لیتا ہے۔ اس ٹیم میں سب سے ڈینجرس مین فرحاد ہے۔ کیا فرحاد اسرائیل کی زمین پر اطلاع دے کر قدم رکھنے کی حماقت کرے گا؟ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، اس سے پہلے فرحاد اپنے کئی ڈمی اسرائیل پہنچا چکا ہے، ایک اور پہنچا دے گا۔ اگر اس ڈمی کو مار ڈالا گیا تو فرحاد کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ سپر ماسٹر ہالی مین نے کہا، فرحاد کی ڈمی جہاں بھی روانہ کی گئی اس کی پہلے اطلاع نہیں دی گئی۔ کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی خطرناک بلا آ رہی ہے۔ اگر ہمارے اعلیٰ افسر کے خیال کے مطابق اسرائیل پہنچنے والی ڈمی کو مار ڈالا گیا تو پھر وہ ڈینجرس مین تو نہ رہا، وہ تو کوئی چوہا ہوگا۔ ایک نے پوچھا، سپر ماسٹر تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بولا، جب تک بات کی طے کو نہ پہنچوں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ یہ ضرور کہوں گا کہ وہاں فرحاد نہیں جائے گا۔ دوسرے نے کہا، تو پھر اس کے 2 بیٹوں میں سے کوئی جائے گا؟ سپر ماسٹر نے کہا، آج تک فرحاد کی فیملی میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ قیامت ہے، طوفان ہے اور ڈینجرس مین ہے۔ نہیں، وہ دعوے نہیں کرتے، جو کرنا ہوتا ہے کر گزرتے ہیں۔ اس لیے فرحاد کا کوئی بیٹا بھی اسرائیل نہیں جائے گا۔ تو پھر کا جواب کل ہی ملے گا۔ دوسرے دن تمام عہدیدار ٹیلی فون، ٹرانسمیٹر اور فیکس مشینوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اطلاع دینے والے نے دماغی رابطہ کیا اور کہا، میں تمہارے پاس ہوں۔ ایک یہودی افسر نے اعلیٰ حکام اور افسران سے کہا، سر وہ میرے اندر بول رہا ہے۔ سب نے اسے توجہ سے دیکھا۔ اطلاع دینے والے نے افسر کی زبان سے کہا، ہاں میں خیال خوانی کی قوت سے بول رہا ہوں، وہ ڈینجرس مین آ رہا ہے۔ ایک نے سوال کیا، پیشگی اطلاع کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ تمہارا سکون اور تمہاری نیندیں حرام ہو گئی ہیں، گویا ہمیں دھمکیوں سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ ایک گڈریا روز چیختا تھا، شیر آیا، شیر آیا۔ لوگوں نے اسے دھمکی یا شرارت سمجھ لیا۔
پھر ایک دن سچ مچ شیر آ گیا، اس لیے دھمکی محض دھمکی نہیں ہوتی، دھماکہ بن جاتی ہے تو سوچنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تم خامخواہ خود کو پراسرار بنا رہے ہو۔ ایک احمق بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ تم فرہاد ہو۔ بے شک احمق یہی کہیں گے۔ وہ جھینپ گیا، پھر بولا، چلو اچھا ہوا کہ فرہاد نہیں ہے۔ وہ ڈینجرس مین ہماری زمین پر قدم رکھتے ہی حرام موت مرے گا۔ اس کے قریب کوئی جائے گا تو وہ خود مرے گا، اور اس کے قریب جانے کا مطلب ہی اپنی زندگی ہارنا ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ اسرائیل میں فوج، ہتھیار اور سیکیورٹی جیسی کوئی چیز نہیں؟ ضرور ہے، لیکن سب چیزیں بے اثر ہو جائیں گی۔ وہ آئے تو آزما لینا، اور ہاں وہ تنہا نہیں، اپنی شریک حیات کے ساتھ آ رہا ہے۔ آخر بات کھل ہی گئی نا، سونیا اور فرہاد آ رہے ہیں۔ سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤ پھر بھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ ویسے خدا گواہ ہے فرہاد اور اس کی فیملی کا کوئی فرد یہاں قدم نہیں رکھے گا۔ میں جا رہا ہوں۔ 1 منٹ، اتنا بتا دو وہ کب آ رہا ہے؟ اس کا جواب کل ملے گا۔ یہ پھر جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرنے والی بات تھی۔ کئی دنوں سے سکون غارت کیا جا رہا تھا کہ کوئی خطرناک شخص آ رہا ہے۔ جب آنے والے کو اہمیت دی جانے لگی تو ایک دن میں ایک ہی سوال کا جواب دیا جانے لگا، دوسرے سوال کا جواب دوسرے دن پر ٹال دیا جاتا تھا، اور یہ غصے اور بے بسی میں مبتلا کر دینے والا انداز تھا۔ ایک گولڈن برین نے کہا، دشمنوں کی چالوں سے کچھ سیکھا کرو۔ وہ گالیاں دے تو تیش میں نہ آؤ، وہ تیش دلائے تو برداشت کرو، تبھی تم ٹھنڈے دماغ سے ہر پہلو پر غور کر سکتے ہو۔ دوسرے گولڈن برین نے کہا، اہم سوال یہ ہے کہ وہ ہمارے ملک میں کیوں آ رہا ہے؟ آنے والے کی دلچسپی ہمارے ملک سے کیا ہے؟ آنے والا چیلنج کے انداز میں آ رہا ہے، لہٰذا وہ دوست نہیں ہوگا، مگر اسے ہم سے دشمنی کیا ہے؟ ہمارا خیال گھوم پھر کر فرہاد کی طرف ہی جاتا ہے۔ اسے پاکستان میں ہماری تجارتی منافع خوری کا علم ہو گیا ہے۔ اس نے ہمارے سب سے بڑے ایجنٹ جان شیرباز کو مار ڈالا ہے۔ اب وہ اپنے کسی ڈینجرس مین کو یہاں پہنچائے گا اور اس کے ذریعے ہماری خارجہ و تجارتی پالیسی پر نظر رکھے گا، اور معلوم کرتا رہے گا کہ اسرائیل کا کتنا صنعتی مال پاکستان میں فروخت ہونے کے لیے نام بدل کر جاتا ہے۔ وہ تو خیال خوانی کے ذریعے بھی ایسی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ پھر ہمارا مال امریکہ اور UK کے تاجروں کے ذریعے بھی جاتا ہے۔ فرہاد اپنے کسی ایجنٹ کو اسرائیل صرف اس مقصد کے لیے نہیں بھیجے گا۔ مقاصد کچھ بھی ہوں، دشمن نے آنے والے کو مہمہ بنا دیا ہے۔ وہ بھی آنے والا ایک نہیں 2 ہیں، اور وہ کم وقت یہاں ہنی مون منانے آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آ چکے ہوں۔ جب اعلانیہ آ رہے ہیں تو چھپ کر نہیں آئیں گے۔ بھائی آنے دو، ہو سکتا ہے ہم کھودیں پہاڑ اور نکلے چوہا۔ ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، کسی چیز کی بڑی دھوم دھام سے شروعات ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اونچی دکان اور پھیکا پکوان۔ ہمارے اطمینان کے لیے یہ بہت ہے کہ فرہاد اور اس کے بیٹے نہیں آ رہے ہیں۔ دوسرے دن اطلاع دینے والے نے پھر رابطہ کیا اور کہا کہ وہ آ رہے ہیں۔ اگلے دن ٹھیک 12 بجے جب سورج سر پہ ہوگا تو وہ تمہارے سروں پر موجود ہوں گے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے پوچھا، کیا تم یہ توقع کرتے ہو کہ ہم بن بلائے مہمانوں کا استقبال کریں گے؟ میں کئی دنوں سے اطلاع دے رہا ہوں، جو تمہاری عقل کہتی ہے وہی کرو۔ وہ کس ملک سے آ رہے ہیں؟ افق کے اس پار سے۔ بین الاقوامی پرواز کے قوانین کے مطابق یہ پہلے سے طے کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کا طیارہ کتنے ممالک سے گزرے گا، اور روٹ لائن کے ہر ملک کو پیشگی اطلاع دی جاتی ہے۔ وہ بن بلائے مہمان آ جائیں تو ان سے پوچھ لینا کہ بین الاقوامی قوانین کی پابندی انہوں نے کیوں نہیں کی۔ ہم اس طیارے کو فضا میں ہی مار کر گرا سکتے ہیں۔ ایسی غلطی نہ کرنا، اسرائیل کا نقشہ اس دنیا سے مٹ جائے گا۔ اطلاع دینے والے نے رابطہ ختم کر دیا۔ بین الاقوامی پرواز کے اداروں کے درمیان رابطے ہونے لگے۔ خلائی اسٹیشن سے جاسوسی کیمرے زمین کے ہر حصے سے پرواز کرنے والی چیزوں کی تصاویر اتارنے لگے۔ دوسرے دن صبح 9:30 بجے خلائی سیارے سے رپورٹ ملی کہ یونان کے جنوب مشرقی ساحل سے ایک طیارے نے پرواز کی ہے۔ وہ افریقہ کے شمالی سمندروں پر سے ہوتا ہوا اسرائیل کی طرف آ رہا ہے۔ پورے اسرائیل میں سنسنی پھیل گئی۔ ہنگامی حالات کا اعلان پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ تل ابیب اور حیفا میں شہریوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ پہلے سرکاری لوگ ان مہمانوں کو دیکھنا چاہتے تھے اور یہ توقع کر رہے تھے کہ کوئی غیر متوقع بات بھی ہو سکتی ہے جس سے شہریوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ ٹھیک 12 بجے وہ طیارہ تل ابیب پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ میں دور تک فوجی جوان اپنی گنوں کے ساتھ مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک چھوٹے سائز کا طیارہ تھا، اس میں 10-12 مسافر پرواز کر سکتے تھے۔ اس کی ساخت بتا رہی تھی کہ وہ کسی خاص کمپنی کا تیار کردہ نہیں ہے۔ اسے چند لوگوں نے خفیہ طور سے کہیں تیار کیا ہے اور بڑی مضبوطی سے تیار کیا ہے۔
वो एक रनवे पर आकर ठहर गया। चंद सेकंड के बाद उसका इंजन बंद हो गया। हजारों फौजियों की नजरें उस तैयारे पर मरकूज थीं। वो एक बंद मुट्ठी की तरह था। पता नहीं उसके अंदर से निकलने वाले कौन होंगे। वैसे ये अंदेशा था कि पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। पेंडोरा बॉक्स की वजाहत हो ही जाए तो बेहतर है। अल्लाह ताला ने जब से ये अर्जी दुनिया आबाद की तो यहाँ मुसर्रतें ही मुसर्रतें थीं। कोई दुख दर्द का मतलब समझता ही नहीं था। किसी की आंख में आंसू नहीं आता था। हर तरफ हंसते मुस्कुराते इंसानी चेहरे थे। एक दिन एक शैतान सिफ्त बूढ़े ने एक हंसती मुस्कुराती लड़की को एक खूबसूरत सी संदूकची ला कर दी और उससे कहा, इसे अपने पास रखो लेकिन इसे कभी ना खोलना। वो बूढ़ा संदूकची देकर चला गया। लोग उस लड़की के हाथ संदूकची को देखने आते थे और कहते थे, जो संदूकची बाहर से इतनी खूबसूरत है वो अंदर से ना जाने कितनी खूबसूरत होगी। ये इंसान की फितरत है कि उससे कोई चीज़ छुपाओ तो वो उसे देखने के लिए बेचैन हो जाता है। हजार मना करने के बावजूद वो उसे जान कर ही दम लेता है। उस लड़की ने वो संदूकची खोल दी। उसके खुलते ही चीखों, आहों और कराहों की आवाज़ें अंदर से उभरती हुई निकलीं और हंसती बसती दुनिया में दुखों और बीमारियों का आगाज हो गया। वो संदूकची पेंडोरा बॉक्स के नाम से मशहूर है और ये महज एक बचगाना किस्सा नहीं, दरसे इबरत है कि इंसान खुद अपनी नादानी या कमअक्ली से मसाइब को दावत देता है। हमने इस्राएली हुकाम को बारहा समझाया, हमसे छेड़छाड़ ना करो, पेंडोरा बॉक्स ना खोलो, लेकिन उन्होंने उस बॉक्स को अपने एयरपोर्ट पर बुलवा ही लिया। अब उस पेंडोरा बॉक्स को तो खुलना ही था। उसके अंदर से दुखों और मुसीबतों का तूफान निकलना ही था। लेकिन उस तैयारे का कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। पहले तो समझ में ही नहीं आया कि वो किधर से खुलेगा और डेंजरस मैन कहाँ से नमूदार होगा। फिर सब चौंक गए। वो तैयारा लर्ज रहा था, जैसे कैद किया हुआ शेर पिंजरे को टकरे मारकर लर्जा रहा हो। 1 मिनट के अंदर ही तैयारे की छत जोरदार आवाज़ से अलग होकर ऊपर उठ गई। उस फौलादी छत को दोनों हाथों से उठाने वाला गैब्रियल ग्रांट था। वो पहाड़ जैसा कदावर शख्स इंसान कम और रोबोट ज्यादा लग रहा था। उसने सालम छत को उठाकर दूर फेंक दिया। फौजी जवान दौड़ते हुए दूर चले गए और अपनी गनों के साथ नई पोजीशनें संभालने लगे। उनके सीनियर अफसरान उन्हें किसी वक्त भी फायरिंग का हुक्म दे सकते थे। छत के खुलते ही सुजैना उठकर खड़ी हो गई। वो भी कद और जिसामत में गैब्रियल ग्रांट के बराबर थी। देखने वालों को समझाने की ज़रूरत नहीं थी कि वो रोबोट की शरीक हयात शी रोबोट है और गैर मामूली ताकत में गैब्रियल से किसी तरह कम नहीं। उसने एक ज़ोरदार बड़क लगाकर तैयारे की दीवार को लात मारी। फौलादी दीवार लर्जाती हुई एक तरफ झुकने लगी। फिर सुजैना की दूसरी किक पर वो दीवार टूटकर रनवे के फर्श पर आ गई। किसी चश्मे हैरत ने यह तमाशा कभी देखा ना होगा जो दिखाई दे रहा था। इस तमाशे को किस्सा कहानी भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि मौजूदा साइंसी दौर में फौलादी रोबोट ऐसी हैरत अंगेज तखरीबी कार्रवाइयाँ पेश कर चुके हैं। सुजैना और गैब्रियल भी ऐसे ही साइंसी तजर्बात से गुजारे गए थे। फौलादी रोबोट बनाने वालों ने यह नया तजर्बा किया था कि गैर मामूली कदावर इंसानों के अंदर अगर फौलादी हड्डियां बनाई जाएं और ऊपर से गोश्त पोश्त का ही जिस्म रहे तो ये आधे इंसान और आधे रोबोट कैसे नताइज पेश करेंगे। बड़ी तलाश के बाद सुजैना और गैब्रियल ग्रांट का जोड़ ऐसे तजर्बात के लिए मिला था। वो यूं भी कुदरती तौर पर निहायत ही शाजोर थे। अमेरिका की एक अंडरग्राउंड लेबॉरेटरी में उन पर कई तरह के तजर्बात किए गए। जैसे जैसे कामयाबियां हासिल होती गईं, मज़ीद नए तजर्बात भी होते रहे। इस दास्तान में उन दोनों का तफसीली जिक्र पहले हो चुका है। आइंदा भी वाक़यात के तसलसल के साथ उनके माजी की अहम बातें पेश होती रहेंगी। मेरी फैमिली को नीस्तो नाबूद कर देने के लिए सुजैना और गैब्रियल ग्रांट को पेरिस भेजा गया था। ये तो दुश्मनों की बदबख्ती थी कि सुजैना हुस्न इत्तफाक से पारस के चक्कर में आ गई और पारस ने उसे अपनी आपा जान बना लिया था। फिर ये रिश्तेदारी इतनी गहरी और मजबूत हो गई कि पारस के मशवरे को वो तस्लीम करके रूपोश हो गए। दोनों को बड़ी राजदारी से बाबा साहब के इदारे में पहुंचा दिया गया। फिर किसी दोस्त तो दुश्मन ने नहीं देखा कि वो कहाँ हैं और उन्हें कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है। अमरीकी साइंसदानों के लिए यह चौंका देने वाली खबर थी कि उनके तजर्बात का निचोड़ इंसानी रोबोट सुजैना और गैब्रियल जिंदा हैं और बरसों बाद इसराइल में नमूदार हो रहे हैं। तिल अबीब के एयरपोर्ट पर कई मकामात पर टीवी कैमरे नस्ब थे। एयरपोर्ट पर जो कुछ हो रहा था उसे सैटेलाइट के जरिए अमेरिका में भी देखा जा रहा था। फिर तमाम ममालिक के अखबारी रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स वहां मौजूद थे।
पहले कहा जा रहा था कि वो दोनों यूनान या आसपास के किसी मुल्क से आए हैं, अब अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था। माजी में सब जानते थे कि दोनों इंसानी रोबोट अमेरिका की ईजाद हैं। सुपरमास्टर हॉलीमैन इसराइली हुकाम को यकीन दिला रहा था कि पारस ने सुज़ैना और गैब्रियल को अगवा किया था। इस सिलसिले में फिर किसी वक्त बहस हो सकती है। फिलहाल उन दोनों को नुकसान पहुंचाने की नादानी ना की जाए। उन पर बंदूक की गोलियां भी असर नहीं करती हैं। वो दोनों तैयारे पर से छलांगे लगाकर रनवे के फर्श पर आ गए थे और शाना बशाना चलते हुए एयरपोर्ट की इमारत की समत बढ़ रहे थे। अफसरान के हुक्म से फौजी जवान पीछे हटकर उन्हें गुजरने का रास्ता दे रहे थे। लाउडस्पीकर के जरिए कहा जा रहा था, मिस्टर ग्रांट और मिसेस सुज़ैना ग्रांट, तुम बिन बुलाए मेहमान हो। हमारे मुल्क में तुम्हारी आमद गैर कानूनी है। इसके बावजूद हम अमन व अमान बहाल रखने के लिए तुम्हें VIP लाउंज तक महदूद रहने की इजाज़त देते हैं। शहरियों की जानो माल की हिफाजत तुम पर भी लाजिम है, लिहाजा हमारे अहकामात की तामील करो। वो दोनों चलते चलते रुक गए। फिर गैब्रियल ग्रांट ने मुंह उठाकर बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज़ स्पीकर के बगैर दूर तक गूंजने लगी। वो कह रहा था, हमें रोबोट ज़रूर बनाया गया है, लेकिन हम इंसान हैं, इंसानों की इज्जत करते हैं। हम यहाँ के हर शहरी की जानो माल की हिफाजत उस वक्त तक करेंगे जब तक हमारे अपने लिए कोई ख़तरा पैदा नहीं होगा। सुज़ैना ने बुलंद आवाज़ से कहा, तुम्हारे बयान के मुताबिक यहाँ हमारी आमद गैर कानूनी है। जब हमारी आमद गैर कानूनी है तो तुम्हारे अहकामात की तामील हम पर लाजिम नहीं रही। वो कहते कहते रुक गई। फिर खला में तकते हुए बोली, कोई टेलीपैथी जानने वाला मेरे दिमाग में आने की नाकाम कोशिश कर रहा है। गैब्रियल ने कहा, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ और ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग हसास बनाए गए हैं और हमने 15 मिनट तक सांस रोकने में महारत हासिल कर ली है। सुज़ैना ने कहा, हमें अफसोस है कि हम तुम्हारे हुक्म के मुताबिक यहाँ के VIP लाउंज तक महदूद नहीं रहेंगे। ये हमारे खाने और फिर कुछ आराम करने का वक्त है, लिहाजा हम 5 स्टार होटल जा रहे हैं। वो इमारत के अंदर से गुजरते हुए एयरपोर्ट के अहाते से बाहर आए। दूर तक कोई शहरी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ मुसल्ला फौजी और उनकी गाड़ियां दिखाई दे रही थीं। गैब्रियल ने एक अफसर से कहा, यह ट्रक खाली करो और हमें होटल पहुंचाओ। अफसर ने वायरलेस के जरिए बात की। एक आला ऑफिसर ने कहा, इन्हें होटल पहुंचा दो, अभी इनके मुतल्लिक कुछ अहम फैसले हो रहे हैं। तमाम आला ओहदेदारान और आला फौजी अफसरान एक बड़े हॉल में मौजूद थे। उनके सामने और दाएं बाएं रखे हुए TV स्क्रीन पर गोल्डन ब्रेन्स नज़र आ रहे थे। उसके अलावा हॉल में और भी बेशुमार TV थे जिनकी स्क्रीनों पर सुज़ैना और गैब्रियल वक्तन फ़वक्तन दिखाई देते थे। एक गोल्डन ब्रेन ने कहा, जो तैयारे की छत और दीवार तोड़ सकते हैं वो हमारे फौजियों को गाड़ियों समेत उठाकर फेंक सकते हैं। गोलियां उन पर असर नहीं करेंगी, लिहाजा जब तक हमें कोई नुकसान ना पहुंचे उन्हें अपनी मनमानी करने दो। एक हाकिम ने कहा, लेकिन ये हमारे मुल्क की और हमारे कवानीन की खुली तौहीन है। यहाँ होने वाले तमाशे सारी दुनिया देख रही है। गोल्डन ब्रेन ने कहा, दुनिया हमारा सब्र और अमन पसंदी भी देख रही है, हमारी तौहीन नहीं हो रही है। आप ये बात दिमाग से निकाल दें। एक आला फौजी अफसर ने कहा, माजी में ये देखा गया है कि तेज़ाब के ज़रिए दोनों इंसानी रोबोट्स का गोश्त और पोस्त गल जाता है। उनसे निजात का आखिरी तरीका यही होगा। दूसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, यह ना भूलो कि दोनों को बरसों रूपोश रखकर तरह तरह की ट्रेनिंग दी गई है। उनके दिमागों को हसास बनाया गया है। पहले ऐसा नहीं था। अब वो 15 मिनट तक सांस रोक लेते हैं। जब उनकी हिफाजत के लिए ऐसे इंतजामात किए गए हैं तो क्या उन्हें तेज़ाब का कोई तोड़ नहीं सिखाया गया होगा? तीसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, उन पर तेज़ाब ज़रूर आजमाया जाएगा, लेकिन आजमाने का तरीका ऐसा होगा कि हम पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। अभी हम सब्र करेंगे, इनसे मुज़ाकरात के लिए अपने रवैये में लचक पैदा करते रहेंगे। इनसे मुज़ाकरात क्या होंगे? एक और गोल्डन ब्रेन ने कहा, हमने कंप्यूटर डिस्क में चंद अहम सवालात फीड किए हैं, आप लोग इन सवालात के मुताबिक उनसे मुज़ाकरात करें। दूसरे TV स्क्रीन पर सुज़ैना और गैब्रियल नज़र आ रहे थे। वो होटल के किचन में थे और खाने की जो चीज़ हाथ लग रही थी उसे खाते जा रहे थे। वहाँ के मुलाजमीन खामोश तमाशाई बने हुए थे। फौजी अफसर ने मैनेजर से कह दिया था कि वो दोनों जिस कमरे में रहना पसंद करें उसका दरवाज़ा उनके लिए खोल दिया जाए। ये कुछ पागल और ख़तरनाक लग रहे हैं लेकिन नॉर्मल हैं, होटल के मुसाफरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फौजी अफसर को पैगाम मिला कि वो दोनों को मुज़ाकरात के लिए आमादा करे और उन्हें ऑडिटोरियम में ले आए। ऑफिसर ने उनसे दरख्वास्त की,
गैब्रियल ने कहा, सॉरी, हम खाने के बाद आराम करते हैं, 2 घंटे बाद ही किसी से मिल सकेंगे। सुज़ैना ने कहा, मुलाकात की भी एक शर्त है। जब हम 2 घंटे बाद होटल से निकलें तो शहरी रौनक बहाल हो जाए, दुकानें खुल जाएं, ट्रैफिक जारी रहे और लोग आज़ादी से घूमते फिरते नजर आएं। हम इंसानों के शहर में आए हैं और तुम लोगों ने इस शहर को कब्रिस्तान की तरह वीरान कर दिया है। अफसर ने यह शर्त अपने ऊपर वालों तक पहुंचा दी। उधर एक नई टेलीपैथी जानने वाली राइमा आ रही थी। यहूदी अकाबरीन एयरपोर्ट पर उसका इस्तकबाल करने आए थे। ये उनके लिए दुनिया की हर खुशी से बढ़कर खुशी का मौका था कि उनके टेलीपैथी जानने वालों में एक और का इजाफा हो रहा था, और ये हिसाब करके वो खुश हो रहे थे कि फरहाद की फैमिली में 6 ख्याल ख्वानी करने वाले हैं। अब उनके पास भी 6 अदद हो गए थे। खुशियाँ भी थीं और परेशानियाँ भी। ऐसे मौके पर सुज़ैना और गैब्रियल मुसीबत बनकर आ चुके थे। वो सोच रहे थे कि राइमा की आमद पर शहर वीरान रहेगा तो वो नागवारी महसूस करेगी, शुबा भी कर सकती है कि उसकी आमद पर किसी को दिली खुशी नहीं। फिर सुज़ैना और गैब्रियल के रवैये से यकीन हो गया कि शहर का अमन व अमान कायम रहेगा, लिहाजा उन्होंने रेडियो और टीवी के ज़रिए पाबंदियाँ ख़त्म कर दीं और हुक्म दिया कि तमाम दुकानें खोली जाएं ताकि शहर की रौनक वापस लौट आए। राइमा की आमद से पहले उन्होंने अपने 5 ख्याल ख्वानी करने वालों को उनकी रिहाइश गाहों तक महदूद कर दिया था ताकि किसी से राइमा का सामना ना हो। गोल्डन ब्रेन्स ने यह तय किया था कि इसराइली ख्याल ख्वानी करने वालों को एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। दुश्मन उनकी मुलाकात से फ़ायदा उठाकर उन्हें एक साथ ट्रैप कर सकते थे। सुज़ैना और गैब्रियल की आमद के बायस 5 टेलीपैथी जानने वाले इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में रिहाइश के लिए चले गए थे। सिर्फ राइमा तिलबीब पहुंची थी। उसके साथ एडी फिशर यानी अली तैमूर था। सुज़ैना और गैब्रियल ने आकर तो सिर्फ तैयारे की छत उड़ाई थी। यहूदी अकाबरीन को अगर ये मालूम हो जाता कि सरजमीन इसराइल पर अली ने कदम रखा है तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती। हम बाकायदा प्लानिंग से काम कर रहे थे, लेकिन हमारी प्लानिंग में ये शामिल नहीं था कि अली तैमूर इसराइल जाएगा। हम तो अली के मुतल्लिक जानते भी नहीं थे कि वो कहाँ है। बस उसकी ज़िंदगी और सलामती का यकीन था। उसके भटकते रहने और इसराइल पहुंचने का इल्म किसी को नहीं था। ये सरासर कुदरत का खेल था। उन्होंने कोशिश की थी कि राइमा को एयरपोर्ट से सरकारी बंगले तक लाने के लिए सिर्फ ऐसे ओहदेदार जाएं जो योगा के माहिर हों, ताकि हम किसी को आलाकार बनाकर राइमा या एडी फिशर तक ना पहुँचें। उनका एक ख्याल ख्वानी करने वाला अली तैमूर के दिमाग में चुपचाप बैठा हुआ था और उसके ख्यालात पढ़ रहा था। राइमा के बयान के मुताबिक उसके चोर ख्यालात से जाहिर हो रहा था कि वो एडी फिशर है, नस्लन यहूदी है और अपनी यादाश्त खो चुका है। ख्यालात पढ़ने वाले ने अली के दिमाग में सवाल पैदा किया कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी भूल चुका है तो उसे अपना नाम और मज़हब कैसे याद है। अली के दिमाग से जवाब मिला, राइमा उसे शादी से पहले जानती थी। शादी के बाद एक हादसे में उसकी यादाश्त गुम हो गई है। टेलीपैथी जानने वाले जे मॉर्गन ने एडी फिशर के मुतालिक ये तमाम बातें गोल्डन ब्रेन्स को बताईं। एक गोल्डन ब्रेन ने कहा, राइमा हमारी पनाह में आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी वफादार बनकर रहेगी। दूसरे ने कहा, बेशक जब वो अपने वतन में अपने हुकाम की पाबंदियां बर्दाश्त ना कर सकी तो हमारी पाबंदियां भी उसे गवारा नहीं होंगी। और पता नहीं ये एडी फिशर हकीकतन कौन है जिसे अपना यहूदी शौहर बना कर लाई है। तीसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, हकीकत छुप नहीं सकेगी। जे मॉर्गन, तुम आज रात राइमा को दिमागी कमजोरी में मुब्तला करोगे। उसके चोर ख्यालात पढ़ो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जे मॉर्गन ने कहा, जी हाँ, राइमा के चोर ख्यालात पढ़ने का मौका मिला तो वो अपने साथी एडी फिशर की हकीकत भी उगल देगी। सुल्ताना और सलमान ख्याल ख्वानी के जरिए सुज़ैना और गैब्रियल के पास मौजूद रहते थे। उन दोनों के साथ जो फौजी ऑफिसर गाइड के तौर पर रहता था, सलमान ने उसके ख्यालात से मालूम किया कि आज राइमा नामी एक टेलीपैथी जानने वाली आई है और उसके साथ उसका शौहर एडी फिशर भी है। सलमान ने बहुत कोशिशें की कि किसी तरह ऐसे ओहदेदार के पास पहुंचे जो राइमा के करीब तर हो, लेकिन पता चला उस नई टेलीपैथी जानने वाली के आसपास योगा के माहिर ओहदेदार मौजूद हैं। उसने सोनिया के पास आकर तमाम रूदात सुनाई। सोनिया ने सुनने के बाद कहा, अब वो लोग बहुत मोहतात हो गए हैं, तुम लोगों को अपने नए और पुराने टेलीपैथी जानने वालों तक पहुंचने नहीं देंगे। जी हाँ, और मैं समझता हूँ कि ये नई टेलीपैथी जानने वाली राइमा भी हसास दिमाग रखती होगी और पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेती होगी। हाँ, वो ऐसा करती होगी, लेकिन उसका साथी एडी फिशर शायद योगा का माहिर ना हो। और एक बात याद रखो,
ये यहूदी अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करते हैं, राइमा पर भी भरोसा नहीं करेंगे। धोखे से उसका ब्रेन वॉश करके उसे अपने मुल्क व कौम का वफादार बनाएंगे। उस वक्त तुम में से कोई राइमा के पास रहे तो बाजी पलट जाएगी। राइमा हमारी आलायकार बन जाएगी। इस मकसद के लिए हमें एडी फिशर के दिमाग में ज़रूर पहुंचना चाहिए। मैं फिर कोशिश करता हूँ। जोजो ने सोनिया के पास आकर कहा, मामा, मैंने राइमा और एडी फिशर की बातें समझ ली हैं। मैं फिशर तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। अंकल, सानी के दिमाग में मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है और आपकी शुरू हो चुकी है। हमारे 4 ख्याल ख्वानी करने वाले 6-6 घंटों के लिए सानी के दिमाग में मौजूद रहते थे और वो जॉन लेम्बोडा के ज़ेरे साया एक ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच गई थी। सुपर मास्टर हॉलीमैन वगैरह ने फैसला किया था कि आइंदा सिल्वाना जोसेफ यानी सोनिया सानी को ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजारा जाएगा। ये मालूम नहीं हो सका था कि दूसरी ट्रांसफॉर्मर मशीन कहीं मौजूद है या नई तैयार की जा रही है। ये अंदेशा था कि सानी पर तरमीमी अमल करके उसका ब्रेन वॉश किया जा सकता है और ऐसा किसी वक्त भी किया जा सकता है। इसलिए हमारे चारों टेलीपैथी जानने वाले बारी बारी 6 घंटों के लिए उसके दिमाग में आते जाते रहते थे। सलमान ने जोजो को उस फौजी अफसर के दिमाग में पहुंचा दिया जो सुजैना और गैब्रियल का गाइड बना हुआ था। लैला बारी बारी उन दोनों के अंदर मौजूद थी और वो दोनों उस ऑडिटोरियम में मौजूद थे जहां चंद आला हुकाम और आला फौजी अफसरान उनसे मुज़ाकरात के लिए आए थे। सुजैना और गैब्रियल ऑडिटोरियम के दरमियानी स्टेज पर थे। वो स्टेज बहुत आहिस्ता आहिस्ता गोल घूमता था और चारों तरफ ऑडिटोरियम में बैठने वाले उस गर्दिश के बायस स्टेज पर बैठने वालों को वाज़े तौर पर देखते रहते थे। एक आला अफसर ने अपने डेस्क पर रखे हुए माइक के ज़रिए कहा, मिसेस सुजैना ग्रांट और मिसेस गैब्रियल ग्रांट, हम तुम्हारी लाइफ हिस्ट्री जानते हैं। तुम दोनों अमरीकी साइंसदानों की पैदावार हो। जब तुम्हें मंजर आम पर लाया गया तो दुनिया तुम्हारे डेल डोल और रोबोट जैसी गैर मामूली शाजोरी देखकर हैरान रह गई। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि तुम दोनों अचानक ही कहाँ रूपोश हो गए थे और अचानक जाहिर होकर हमारे मुल्क में ही क्यों आए हो। पहले दोनों खामोश रहे। फिर गैब्रियल ने कहा, सुजैना, ये तुमसे पूछ रहे हैं। सुजैना बोली, नहीं, ये तुमसे सवाल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ तुमसे सवाल कर रहे हैं और मैं कहती हूँ कि ये तुमसे पूछ रहे हैं। वहाँ बैठे हुए तमाम लोग कभी सुजैना और कभी गैब्रियल को देख रहे थे। एक आला हाकिम ने अपने डेस्क पर रखे हुए माइक के ज़रिए कहा, हमने ये सवाल तुम दोनों से किया है। गैब्रियल, तुम ही जवाब दे दो। वो बोला, आपका पहला सवाल है कि हम कहाँ रूपोश हो गए थे। अगर मैं बताऊं कहाँ रूपोश थे तो रूपोशी का मकसद फौत हो जाएगा। कोई छुपने वाला कभी ये नहीं बताता कि छुपने की जगह कौन सी थी और छुपने की वजह क्या थी। सुजैना बोली, दूसरा सवाल ये है कि हम इस मुल्क में क्यों आए हैं। इसीलिए कि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए यकसा मजहबी अहमियत का हामिल है। हम अपने ईमान और अपनी अकीदत के बायस यहाँ क़याम करने आए हैं। लेकिन तुम्हें बाकायदा पासपोर्ट हासिल करके आना चाहिए था। क्या तुमने मुसलमानों से यह मुल्क छीनने के लिए पासपोर्ट हासिल किया था? एक हाकिम ने कहा, मुसलमानों और ईसाइयों से पहले यहाँ यहूदी मज़हब आया। यहाँ की ज़मीन पर सदियों से हमारा हक है। गैब्रियल ने कहा, ईसाइयत आई तो यहाँ यहूदियत कमज़ोर पड़ गई, फिर इस्लाम आया तो ईसाइयत कमज़ोर पड़ गई। आखिरकार अमेरिका सुपर पावर बन गया तो उसने अरबों से ये ज़मीन छीन कर तुम्हें दे दी। इंसानी तारीख क्या है? ताकत का खेल है। जिस शाहजोर ने जहाँ कदम जमाए वहाँ से कोई कमज़ोर उसे हटा ना सका। सुजैना बोली, मैंने और गैब्रियल ने भी शाहजोरी से यहाँ कदम जमाया है। तुम्हारी पुश्त पर सुपर पावर है। अगर तुम शाहजोर हो तो हमें ख़त्म कर दो, अगर कमज़ोर हो तो हमें इसी तरह बर्दाश्त करो जैसे फ़लस्तीनी मुसलमान तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। गोया तुम हमें चैलेंज कर रही हो। हमारा यहाँ आना ही एक चैलेंज है। इतनी देर से क्यों समझते हो? एक ने कहा, हम जानते हैं तुम दोनों नाकाबिले शिकस्त हो। तुम्हारे जिस्मों की तोड़ फोड़ नहीं की जा सकती। तुम पर बंदूक की गोलियां असर नहीं करती, लेकिन तेजाब से तुम्हारी खाल और गोश्त को गलाया जा सकता है। क्या तुम ऐसा वक्त आने दोगे? कोई ऐसा वैसा वक्त नहीं लाता। वक्त खुद आता है और खुद गुजरता है। आने वाला कोई वक्त बताएगा कि तेजाब से हमारा कुछ बिगड़ता है या नहीं। वैसे हमारे जिस्म के किसी एक हिस्से को नुकसान पहुंचेगा तो तुम्हारी एक बस्ती तबाह हो जाएगी। अगर हमारे पूरे जिस्म को नुकसान पहुंचेगा तो तुम्हारा पूरा मुल्क खंडर बन जाएगा। जब भी आजमाने का हौसला हो तो हमें आजमा लेना। एक आला अफसर ने कहा, तुम दोनों जबरन यहाँ आए हो। हमारे लिए एक बोझ, एक मसला हो। इसके बावजूद हम तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे।
ہمارے درمیان ایسا سمجھوتا ہونا چاہیے جس سے دوستانہ ماحول ہمیشہ قائم رہے۔ ایک حاکم نے کہا، یا تمہاری کچھ شرائط ہوں جنہیں ہم تسلیم کر لیں تو تم دونوں یہ ملک چھوڑ کر جانے پر راضی ہو جاؤ۔ سوزینہ نے کہا، ابھی تو ہم رہنے آئے ہیں، اس لیے جانے کی بات نہ کرو۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں کہ جب تک ہم محفوظ رہیں گے تب تک یہاں کسی فرد کو ہماری طرف سے نقصان نہیں پہنچے گا، اور تمہاری خواہش کے مطابق دوستانہ ماحول قائم رہے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں ہمارے ملکی معاملات میں کبھی مداخلت نہ کرو۔ گیبریل نے پوچھا، کیا تم دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے ہو؟ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔